This three we have the Khairagarh, this particular rivers. Okay, so most of the rivers are also originating from this particular Mekelle range. So आपका जो भी river यहाँ से originate हो रहा है, they flow in this particular region, meet this particular Shivnath, which is a part of your Mahanadi basin. Okay, so this particular river which are coming in the Chhattisgarh, these are all the parts of your Mahanadi basin. ये तो यहाँ से क्लियर हो गया, महानदी बेसिन के ही पार्ट हैं सारे के सारे रिवर. बट ऑन द अदर साइड इफ यू सी दिस पर्टिकुलर Mekelle range, सो हियर इन द पेंड्रा लोरमी प्लेटू समवेयर हियर, सो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, रिवर नर्मदा. सो रिवर नर्मदा विल कम एंड फ्लो लाइक दिस पर्टिकुलर, एंड अगेन हियर वी हैव द रिवर सोन, एंड सोन विल कम एंड फ्लो लाइक दिस पर्टिकुलर. सो दिस पर्टिकुलर Mekelle range एक्ट एज अ वाटर डिवाइड. सो दिस पर्टिकुलर Mekelle range एक्ट एज अ वाटर डिवाइड. ओके, सो वाटर डिवाइड मीन्स इट विल सेपरेट. If the question come what is water divide, क्या बोलना है? So this particular water divide is the region which separate the two different drainage basin. ऐसा नहीं है कि दो रिवर को अलग कर रहे, ड्रेनेज बेसिन को ही अलग कर देते हैं. ठीक है, so this act as a water divide between river Shivnath, sorry, this act as a water divide between Mahanadi basin and Narmada basin. Okay, and also it also act as a divide between Son and Mahanadi. Okay, so we will talk about the basin region, not as such the river only. Okay, so it will act as a, if they talk about the river, so it will bifurcate Shivnath and that particular region. But हम लोग क्या करते हैं, उसको बेसिन लेकर चलते हैं, इसलिए it act as a water divide between the Mahanadi basin and the Narmada basin, and also Mahanadi basin and the Son basin. Okay, so Mahanadi and Son basin. So please remember name of some of the rivers which are originating from your Mekelle ranges. So here अगर हम लोग rivers को देखेंगे, so these are the various rivers like river Maski, we have river Piparia, there Amner. ठीक है, so from this particular region, so we have the various river originating in this particular region of your Mekelle ranges. Again, we talk about the physiography of this particular Mekelle ranges where we have seen the various rivers. So if we talk about the physiography, आपका ये जो Mekelle range है, इसकी अगर हम लोग physiography को थोड़ा सा समझें. ठीक है, physiography means what all types of rocks are found here, what all types of soils are found here. So if we talk about this particular Mekelle ranges, so in the foothills of Mekelle, अगर Mekelle के ये foothills देखेंगे, so there we have the black soil. क्या मिलेगा आपको? black soil मिलेगा. Okay, and this particular black soil कंटिन्यूसली कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिवर्स, ये क्या करते हैं, इसको लाकर यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे. ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर रीजन वी विल फाइंड द ब्लैक सॉइल, एंड अपार्ट फ्रॉम ब्लैक सॉइल वी विल ऑल्सो फाइंड हियर समवेयर हियर इन द राजनांदगांव एरियाज. अगर वहाँ देखेंगे तो बिट ऑफ रेड येलो सॉइल भी आपको यहाँ पर मिलेगा. ओके, सो वी हैव द प्रेजेंस ऑफ रेड येलो सॉइल. Mostly we will find the black soil, and also in parts we will find the red yellow soil, and these two particular soil are very fertile. So ये दोनों के दोनों soil क्या हैं, ये बहुत ही fertile soil है, and because of the fertility this particular region on the this particular region act, ये वाला जो पूरा का अच्छा रीजन है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल वी हैव द गुड कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन इन दिस पर्टिकुलर रीजन. ओके, सो वी हैव द कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन, एंड ऑन दिस पर्टिकुलर रीजन उसकी जो लोअर पार्ट है देयर वी हैव मोस्ट ऑफ द रबी क्रॉप्स. ओके, सो विल फाइंड मोस्ट ऑफ द रबी क्रॉप्स यहाँ पर एक्सटेंसिवली देखने को मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम फ्यू खरीफ क्रॉप्स एज वेल. सो इन खरीफ क्रॉप विल फाइंड द soybean. So soybean crops is grown mostly in the districts of Kabardha, Rajnandgaon and Bemetara surrounding region. So soybean crops will find the soybean crops, will find the sugarcane crops, rabi crops, because of the fertility of soil. But that doesn't means कि आपका fertility है सिर्फ तो आपका that doesn't means कि आपका क्या है, fertility है तो ये सारे के सारे crops वहाँ पर हैं. क्योंकि अगर इस रीजन को अच्छे से समझेंगे, so most of the, if you see most of the विंड्स, अगर यहाँ से आपका क्या होते हैं, कुछ विंड्स आते हैं, दिस पर्टिकुलर विंड्स आर कमिंग, दिस आर द अरेबियन सी विंड्स. ओके, सो अरेबियन सी से जो विंड आते हैं, टॉकिंग अबाउट द मॉनसूनल विंड्स इन दिस पर्टिकुलर थिंग यू विल नॉट गेट पर्टिकुलरली, आप इस पर समझिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज छत्तीसगढ़ सपोज करते हैं, और यहाँ पर आपका क्या है, दिस इज द Mekelle रेंज माउंटेन. एंड नाउ दिस पर्टिकुलर मॉनसून ब्रांच ऑफ अरेबियन सी कम इन लाइक दिस. यहाँ से क्या आ रहा है, अरेबियन सी से आने वाली जो मानसून की हवाएं हैं, ठीक है, तो विंड कमिंग फ्रॉम अरेबियन सी वो आकर यहाँ पर आ रही है. ठीक है, एंड वन ऑफ द सीरीज़ यहाँ से जो आते हैं बे ऑफ बंगाल से. सो बे ऑफ बंगाल आर्म्स कम इन दिस पर्टिकुलर मैनर, और वो यहाँ से निकल जाते हैं. सो दिस पर्टिकुलर Mekelle रेंजेस, इस पर क्या हो रहा है, जब यहाँ से जब क्या होंगे, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन, वंस द विंड विल कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन, सो इट विल
हिट दिस पर्टिकुलर रेंज, तो वो क्या होगा, मैकल रेंज से टकराएंगी, ओके, एंड देयर द ऑल द वाटर्स और ऑल द मॉइस्चर्स इन दैट पर्टिकुलर क्लाउड गेट बी, यहाँ पर जितना का जितना रीजन है ये वाले में, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेसिव रेनफॉल देखने को मिलेगा, ओके। सो इस वाले रीजन पे जब भी आपके अरेबियन सी ब्रांच से जो भी आपके क्या आएंगे मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स आएंगे, दैट क्लाउड विल डाउनपोर हियर। सो आपको इस तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑन दिस पार्ट वी विल फाइंड द रेनफॉल, बट दैट पार्ट, तो ये वाला पार्ट क्योंकि क्या हो रहा है, सपोज दिस इज द मैकल माउंटेन, ठीक है, एंड दिस आर द क्लाउड्स, दिस क्लाउड्स आर कमिंग लाइक दिस क्लाउड विल हिट द मैकल रेंज एंड डाउनपोर हियर। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, अगेन सम ऑफ द क्लाउड विल कम लाइक दिस, अगेन इट विल डाउनपोर हियर, क्योंकि यहाँ से टकराएगा एंड देयर कॉजेज योर ओरोग्राफिक रेनफॉल, टाइप ऑफ रेनफॉल विच आर कॉज बिकॉज ऑफ वंस द डायरेक्शन और द फ्लो ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लाउड हैविंग द मॉइस्चर, ऐसा क्लाउड या बादल बोल सकते हैं जिसमें आपके क्या है, वाटर्स हैं, जब वो कहीं से भी क्रॉस कर रहे हैं किसी भी एरिया से जहाँ पर आपका क्या है, आपके माउंटेन्स हैं, तो वो वहाँ पर टकरा कर क्या करते हैं, रेनफॉल करते हैं। सच टाइप ऑफ रेनफॉल कॉल्ड एज ओरोग्राफिक रेनफॉल। सो ये यहाँ पर क्या करेंगे, ओरोग्राफिक रेनफॉल करेंगे, एंड वंस द क्लाउड और द विंड विल कम हियर, सो इसमें क्या होगा, उतना मॉइस्चर ही नहीं होगा, सो दिस पर्टिकुलर रीजन इट विल गो लाइक दिस पर्टिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो रेनफॉल ही नहीं होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रेन फॉल ऑकर ऑन द वेस्टर्न मार्जिन, तो आपके वेस्टर्न साइड में होगा और छत्तीसगढ़ में रेनफॉल नहीं होगा, एंड दैट पर्टिकुलर साइड, ठीक है। तो विंड क्या होता है, विंड जिस साइड पे हिट करता है, जिस साइड पे आपका क्या होता है, विंड और द क्लाउड विल हिट, इट इज कॉल्ड एज योर विंडवर्ड साइड, दिस इज कॉल्ड एज योर विंडवर्ड साइड, एंड द अदर साइड जिस तरफ आपका क्या हो रहा है, पास हो रहे हैं, खाली वहाँ से यहाँ से जाकर हिट करने के बाद वो उधर से पास हो रहे हैं, सो दैट पर्टिकुलर साइड इज कॉल्ड एज योर लीवर्ड साइड, ओके। सो लीवर्ड साइड, सो मैकल सीरीज, अगर मैकल सीरीज की बात करेंगे तो यहाँ से आते हैं और यहाँ पर पूरे डाउनपोर होता है और वो सारा का सारा लीवर्ड साइड है। सो बिकॉज ऑफ द मैकल प्रेजेंस इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ छत्तीसगढ़, सो वेस्टर्न मार्जिन, so most of the state lies in the west, or most of the district of Chhattisgarh lies in the western margin are of your Chhattisgarh, which are in the foothills of this particular Mackal ranges are facing a leeward side impact, okay। so वहाँ पर हमारे को क्या मिलेगा, leeward side impact, and what is this particular leeward side impact, leeward side impact means वहाँ पर आपका रेनफॉल नहीं देखने को मिलेगा, ओके। so वहाँ पर आपका क्या होगा, where विल नॉट फाइंड द रेनफॉल, और होगा भी तो बहुत ही कम होगा, ओके। सो रेनफॉल वहाँ पर बहुत ही कम होगा, ठीक है। सो प्लीज़ रिमेंबर आपका यहाँ पर क्या है, ऑल द डिस्ट्रिक्ट, सो डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ योर कवर्धा विल फाइंड द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। सो कवर्धा वगैरह में अगर देखेंगे तो वहाँ पर रेनफॉल उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट अगेन इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू एंड ये वाला रीजन, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फॉरेस्ट आपका यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व कारण, सो इन कोटा एंड इन द सराउंडिंग रीजन ऑफ पेंड्रा लोरमी वी विल हैव द गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बट अगर यहाँ पर देखेंगे सो देयर वी डू नॉट हैव द रेनफॉल, सो दिस बिकॉज मेनली बिकॉज ऑफ द लीवर्ड साइड इफेक्ट, ओके। दिस आर द विंडवर्ड साइड एंड दिस आर द लीवर्ड साइड, तो लीवर्ड साइड इम्पैक्ट होने के कारण आपका रेनफॉल नहीं मिलेगा, ओके। PSC asks this particular question as such, okay, why this particular Kavardha receives a lesser rainfall than the other part of Chhattisgarh, it is mainly because of the presence of this particular Mackal ranges, which this particular Mackal ranges which क्या हो रहा है, यहाँ पर जो भी आपके winds आ रहे हैं, ओके, तो वो विंड को क्या कर रहा है, यहाँ से रोक रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर मैकल रेंजेस ऑल द रेन्स आर डाउन पोरिंग इन दिस पर्टिकुलर साइड एंड दैट साइड बिकम अ लीवर्ड साइड, ओके। प्लीज़ रिमेंबर, आपको मैं कोई भी कॉन्सेप्ट इफ़ आई एम स्ट्रेसिंग दैट मीन्स वो कॉन्सेप्ट वहाँ पर आपके एग्जाम पे पूछे हुए क्वेश्चन है और वो आपको आपका इम्पैक्ट करेगा एग्जाम पे, ठीक है। सो मैकल वी विल हैव द लीवर्ड साइड इम्पैक्ट, आई एम कवरिंग बोथ द एस्पेक्ट्स, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए भी और आपका मेंस के लिए भी, ठीक है। सो दिस इज the various sections of your Mackal ranges, some of the geographical concepts or the understanding required for this particular Mackal range, so okay, so please remember this thing. Now because of presence of this particular, we have black soil and this particular region, so we have the good amount of agricultures, mainly because of this particular black soil. So agriculture, we have the sugarcane, and as we have the lesser rainfall in this particular region, so most of the rabi crops are growing here. So if you talk about the various rabi crops, तो राजनांदगांव एंड कवर्धा, so राजनांदगांव, कवर्धा एंड बेमेतरा, ये तीन डिस्ट्रिक्ट्स आपके छत्तीसगढ़ में इफ़ यू टॉक अबाउट द दिस पर्टिकुलर क्रॉप रबी क्रॉप, तो ये डोमिनेट करेंगे हमेशा, ओके। आई विल डिस्कस दैट इन द एग्रीकल्चर पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ओके। सो दिस आर द वेरियस
क्रॉप्स टाइप इन द पर्टिकुलर मैकल फुटहिल्स, ठीक है। तो मैकल के फुटहिल्स की बात कर रहे हैं। अगेन इन टर्म्स ऑफ योर वेजिटेशन, अगर हम लोग वेजिटेशन की बात करें, एग्रीकल्चर इज समथिंग मैन मेड एंड वेजिटेशन इज द नेचुरली ग्रोन। सो इन टर्म्स ऑफ वेजिटेशन दिस पर्टिकुलर मैकल रेंज हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ साल फॉरेस्ट, ओके। सो आपके मैकल रेंजेस में हमको क्या दिखेगा, साल फॉरेस्ट दिखेगा। दैट मीन्स इन द फुट हिल्स ऑफ मैकल वी हैव अ प्रेजेंस ऑफ ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ओके, और द ड्राई मॉइस्ट टू ड्राई लिख लेंगे आप लोग, ठीक है, मॉइस्ट टू ड्राई डेसिडियस, वी हैव द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट टू ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। एंड व्हाट इज दिस पर्टिकुलर डेसिडियस फॉरेस्ट? सी अब बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ को क्लियर करते रहा हूँ। दिस पर्टिकुलर डेसिडियस मीन्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज। कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं दैट शेड देयर लीव्स, आपके वो क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में अपने लीव्स को पूरे नीचे कर देते हैं टू अवॉइड द ट्रांसपिरेशन लॉस। ट्रांसपिरेशन जैसे आपका नॉर्मल वाटर होता है तो उससे क्या होता है, इवोपरेशन होता है, ठीक है। पर वही जब जो पेड़ के अंदर जो वाटर है एक्सट्रीम गर्मी में क्या होता है, वो भी आपका सनलाइट पड़ने से वो भी वाटर उससे ऊपर निकलता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इज द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। टू अवॉइड द ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्री शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग योर एक्सट्रीम योर समर सीजन, ठीक है। तो समर में जो वो शेड करते हैं लीव्स को, उनको क्या बोला जाता है, डेसिडियस ट्रीज बोलते हैं। एंड इन छत्तीसगढ़ विल फाइंड मॉइस्ट टू ड्राई डेसिडियस इन द मैकल रीजन, स्पेशली द साल फॉरेस्ट। एंड साल इज अ टाइप ऑफ मॉइस्ट डेसिडियस ट्री। साल जो है वो आपका मॉइस्ट डेसिडियस है, ड्राई नहीं है, ठीक है। बिट ऑफ ड्राई डेसिडियस योर टीक, जो आपको बोलते हैं सागौन बोलते हैं, ठीक है। सो इन मैकल रेंज वी विल फाइंड द साल फॉरेस्ट, ओके। सो मोस्ट ऑफ द साल ट्रीज आर ग्रोन इन दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ मैकल रेंज, ओके। सो वी हैव द साल फॉरेस्ट। If we talk about, I will find various medicinal and herbal trees also. अगर ये पूरे के पूरे रीजन को देखेंगे तो here we have the various medicinal and herbal trees, और जो छोटे छोटे स्क्रब्स वगैरह मिलते हैं वो सारे के सारे दिखेंगे, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर मैकल हैज़ द इम्पोर्टेंस इन टर्म्स ऑफ योर medicinal plant as well. You will find various medicinal plants, okay. And if talking about the fauna types, if we talk about the various important animals find in this particular region, so again I have talked about, यहाँ पर आपका क्या है, हियर इज योर कान्हाकेशली बांधवगढ़, हियर इज द बांधवगढ़ कान्हाकेशली। सो इस तरह से आपका क्या है, ये पूरा का पूरा एक टाइगर कॉरिडोर है। सो अगेन इन द अचानक मार्ग इन छत्तीसगढ़ अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा टाइगर आपके कहाँ है, इन छत्तीसगढ़। इन द छत्तीसगढ़ वी हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर, आउट ऑफ 19 टाइगर्स वी हैव द 11 टाइगर्स इन योर अचानक मार्ग ओनली, ओके। सो वी विल हैव द टाइगर हियर, and where we will find the tiger, we will also find some of the sambars or the deers, okay. So we will have the deer, variety of sambar, okay. So we will have the presence of all this type of fauna as such, okay. So again I am giving you more concepts or the more understanding regarding this thing as well. And in the foot hills, यहीं अगर देखेंगे मैकल पे, so मैकल पे ही आपको क्या मिल रहा है, अचानक मार्ग बायोस्फीयर रिजर्व। ऑन द फुट हिल्स ऑफ मैकल वी हैव द भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस अचानक मार्ग एंड ऑल्सो वी हैव द भोरम देव, ओके। सो वी हैव अचानक मार्ग एंड भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो आई होप आप लोगों को मैकल रेंज का हर एक चीज़ समझ आएगा। वेयर आई हैव सीन गिव यू द वेरियस रिवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन जो यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। आई टॉक्ड अबाउट द फिजियोग्राफिक फीचर्स इंक्लूडिंग द सॉइल्स एंड अदर थिंग्स, ओके। एंड इन दिस पर्टिकुलर, क्योंकि ये क्या है, माउंटेन किसी भी एक सेडिमेंट से बनता है, ठीक है। तो सेडिमेंट गॉट अपलिफ्टेड एंड वी विल फाइंड द माउंटेन। सो यहाँ पर हम लोग किसी रॉक टाइप की बात नहीं करते। इफ़ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर रॉक टाइप इन दिस पर्टिकुलर रीजन, यहाँ पर देखेंगे तो कवर्धा इन सम फेयर विल ऑल्सो फाइंड द धारवाड़ रॉक। सो हियर वी हैव द प्रेजेंस ऑफ धारवाड़ रॉक, वी हैव द प्रेजेंस ऑफ आर्कियन रॉक, एंड ऑल्सो एज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रेजेंस ऑफ रिवर, सो हियर again we will find the Dharwad, we'll find the Archean and also the Kadapa rock, ठीक है। So we'll find the Archean, Dharwad and your Kadapa rock. And in such, if we talk about the complete Mahanadi, so most of the book will write this particular is formed by your Kadapa rocks, ठीक है। So Kadapa rocks and including Archean, so Archean and Kadapa, so most of the region, क्योंकि इस रीजन का अगर डोमिनेंस देखेंगे ना तो सबसे ज़्यादा डोमिनेट कौन करेगा, कडप्पा रॉक्स करेगा। सो बुक्स आर राइटिंग कडप्पा रॉक्स, बट ऐसा नहीं होता कि आपका पूरे के पूरे उस एरिया में आपको सिर्फ कडप्पा मिलते हैं। विल ऑल्सो राइट कि छत्तीसगढ़ प्लेन इज फाउंड मेनली बाय द कडप्पा रॉक्स एंड द आर्कियन रॉक्स, बट इन पैचेस वी विल ऑल्सो फाइंड सम ऑफ द अदर रॉक्स इंक्लूडिंग इन दिस पर्टिकुलर रीजन वी विल फाइंड द विंध्यन रॉक्स एंड इन सम पार्ट वी विल ऑल्सो फाइंड द धारवाड़ रॉक्स। सो मैकल, इन द मैकल रेंजेस वी विल फाइंड दिस रॉक्स धारवाड़, आर्कियन एंड योर कडप्पा रॉक्स। मेनली दिस पर्टिकुलर रॉक्स आर फाउंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ एक लामा एंड चेलिकामा, ठीक है, जहाँ से हमें क्या मिल रहा है, बॉक्साइड ओर्स मिल रहे हैं। हियर इन बिलो दिस पर्टिकुलर मैकल रेंजेस अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी आपको क्या देखने को मिलेगा, योर धारवाड़ रॉक्स देखने को मिलेगा, ओके। वी हैव द धारवाड़, कडप्पा एंड योर
this particular Archean rocks. ठीक है, so we have the presence of these 3 rocks in this particular Meckel ranges. आपका पूरा का पूरा मैकल्स का आई विल गिव यू द राइटअप्स, प्लीज़ रीड दैट पर्टिकुलर राइटअप, वो सफिशिएंट होगा। और जितना मैंने आपको यहाँ पर समझाया है उसको यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। अदर वे अराउंड यू विल फाइंड दैट पर्टिकुलर थिंग इन द मैप, जो कि आपको हैंडआउट्स दिए जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द मैकल रेंजेस। ओके, नाउ विल मूव टुवर्ड्स द सेकेंड सेक्शन विच इज़ योर पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू। Today we will talk about the various uplands, and tomorrow in the other lecture we will talk about the basin area. Okay, so today we will talk about the upland area. Now we will move towards the Pendra Lourmi plateau. So I'll drawing this particular thing again. One more thing I forget here. So अगर आप पूरे के पूरे मैकल रेंज को अगर अच्छे से देखते हैं इस तरह से, so Meckel range is a bit like Meckel in Chhattisgarh will look like this particular, and this particular shape, अगर shape की बात करेंगे, so this particular shape is like half moon shape. So Meckel is half moon shape. Okay, half moon shape का अर्धचंद्राकार बोलते हैं, और जिसको बोलते हैं हाफ मून शेप्ड. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दैट थिंग एज वेल. नाउ विल टॉक अबाउट द पेंड्रा लोरमी प्लेट्यूज, ये वाला जो सेक्शन है. ठीक है, सो इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू, वो कुछ ऐसा है. दिस इज द पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू, एंड इन दिस पर्टिकुलर इफ यू टॉक अबाउट, तो यहाँ पर आपका क्या है, दिस इज द लोरमी, अ पार्ट ऑफ, अगर ये देखेंगे तो ये लोरमी में आएगा. ओके, एंड लोरमी दैट मीन्स इट विल लाइज इन योर मुंगेली. ओके, एंड वी हैव दिस इन योर पेंड्रा एंड गोरेला. सो मुंगेली, Gorilla and Pendra. Okay, so it will touch Mugheli district and also GPM and parts of, अगर यहाँ देखा जाएगा तो in parts of it will also touch your बिलासपुर. Okay, so बिलासपुर को भी टच करेगा थोड़ा सा. अपार्ट फ्रॉम बिलासपुर इट विल ऑल्सो, अगर इसका एक्सटेंशन देखेंगे यहाँ पर, तो इट विल ऑल्सो एक्सटेंड इन द कोरबा. सो पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू, इफ यू टॉक अबाउट एक्सटेंशन, विल हैव इन मुंगेली, वी हैव दिस इन योर GPM, वी विल फाइंड इट इन योर बिलासपुर, एंड ऑल्सो इट विल एक्सटेंड टिल योर कोरबा. एंड कोरबा पे जहाँ पर इसका एक्सटेंशन है, देयर वी हैव द लाफागढ़ पीक. ओके, सो कोरबा में ही यही आपका पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू कुछ इस तरह से बढ़ता है कोरबा में, और यहाँ पर ही आपका देखेंगे सेक्शन में, सो देयर वी हैव द लाफागढ़ पीक. ओके, सो कोरबा वी हैव योर लाफागढ़ पीक. Okay, so this particular Korba we have the Lafagarh peak. We will find this Lafagarh peak importance in the history of Chhattisgarh. It is also called as the, this particular Lafagarh peak, there we have the very important fort of Chhattisgarh. Okay, वहाँ एक fort है that is called as the, that particular fort जो वहाँ पर बना हुआ है वो बहुत ही important था during your Kalchuri era. So I will talk about that particular forts as well जब हम लोग हिस्ट्री करेंगे. सो इन कोरबा वी हैव द लाफागढ़ पीक. ओके, एंड अगेन इन दिस पर्टिकुलर रीजन, अगर यहीं पर देखेंगे लाफागढ़ पीक जहाँ पर है, सो देयर वी हैव द 2-3 इंपॉर्टेंट माउंटेन सेक्शन अगेन. ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे अभी बाद में. फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग. इन मुंगेली, आपका मुंगेली और आपका क्या है, गोरेला पेंड्रा मरवाही. सो इन दिस पर्टिकुलर गोरेला पेंड्रा मरवाही वी हैव वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पीक कॉल्ड पल्मा. ओके, सो पल्मा पीक इज़ द हाइएस्ट पीक. अगर पल्मा को देखेंगे तो ये सबसे हाईएस्ट पार्ट है किसका, आपका पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू का. सो हाईएस्ट पीक ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन. ओके, सो दिस पल्मा पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस पर्टिकुलर पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू. इट फॉल्स अंडर दिस पर्टिकुलर 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मुंगेली, गोरेला, पेंड्रा, बिलासपुर एंड कोरबा. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग. फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेंड्रा सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू, this is the Gorilla section and this is the Mugheli section. So from this particular Mugheli section, Lormi, here we have your Sihaval Sagar. So this is the Sihaval Sagar. Okay, Sihaval Sagar. And from this particular Sihaval Sagar, a river originates and flows like this. This is the river Maniari. Okay, so this is the river Maniari. If we talk about this particular Gorilla section here, अगर इसके ऊपर जाएंगे थोड़ा सा तो ये क्या होगा, दिस इज पार्ट ऑफ योर अमरकंटक रीजन. ओके, सो यहाँ पर क्या है, अमरकंटक रीजन. एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर गोरेला रीजन, फ्रॉम हियर ओरिजिनेट अ रिवर कॉल्ड रिवर सोन.
रिवर सोन, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगी, रिवर सोन। और इसी के जस्ट ऊपर वाला पार्ट अगर देखेंगे तो यहाँ क्या है, अमरकंटक प्लेट्यू। सो दिस पर्टिकुलर पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ योर अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक है। सो ये भी याद रखना, पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ योर अमरकंटक प्लेट्यू। Okay, so Pendra Loormi plateau is a part of Amarkantak plateau and from here originate a river Son, and from this particular section यहाँ पर अगर देखेंगे, so in the Pendra section here lies a important peak called your Khodri Khongsara. It is called as your Khodri Khongsara, ठीक है। and from this particular Khodri Khongsara peak, from here originate a river called river Arpa. So very famous river अरपा, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ छत्तीसगढ़, रिवर अरपा ओरिजिनेट। सो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन वी हैव द सोन रिवर फ्लोइंग लाइक दिस, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन वी हैव द ओरिजिनेशन ऑफ रिवर अरपा। ओके, सो दिस इज द रिवर अरपा। सी किस तरह से पूरा रिवर ही रिवर आपको दिख रहा है। अगेन आई विल ड्रॉ ईच एंड एवरी रिवर, पूरे रिवर्स को यहाँ पर प्लॉट करेंगे तब दिखेगा कि महानदी बेसिन इज सराउंडेड बाय ऑल द रिवर्स। ओके, सो वी हैव द फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू वी हैव द ओरिजिनेशन ऑफ रिवर सोन, वी हैव रिवर अरपा एंड रिवर मनियारी, एंड दिस पर्टिकुलर पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू वी हैव द टू इंपॉर्टेंट पीक्स। ओके, तो इतना आपको याद रखना है। एंड दिस पर्टिकुलर पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू हियर इन दिस पर्टिकुलर रीजन अगर देखेंगे तो क्या कर रहा है, अचानक मार्ग बायोस्फीयर रिजर्व उस पर टच करेगा, एंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन वी हैव द मूवमेंट्स ऑफ वाइल्ड बियर। ओके, सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, बियर्स देखने को मिलेगा, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाइल्ड बियर दिस पर्टिकुलर रीजन इज डिक्लेयर्ड अंडर द प्रोजेक्ट जामवत। ओके, सो वी विल हैव द प्रेजेंस ऑफ वाइल्ड बियर इन दिस पर्टिकुलर रीजन, एंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर वाइल्ड बियर this particular region comes under your project Jamvat. Okay, project Jamvat, please remember project Jamvat. And if you move from this particular Pendra Loormi ये वाले सेक्शन से, तो ये here एंड दिस पर्टिकुलर सेक्शन वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर आपका बहुत ही अच्छा, यहाँ पर अगर पूरा का पूरा लोकेशन को देखेंगे, सो सम ऑफ दिस पर्टिकुलर लोकेशन विल सपोर्ट सम ऑफ द सिट्रस फ्रूट्स एज वेल। तो यहाँ पर क्या होता है, मोस्टली सिट्रस फ्रूट्स यहाँ पर ग्रोन किए जाते हैं, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर रीजन हैव द सिट्रस फ्रूट्स एज वेल बिकॉज ऑफ द हाइट्स। वहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो रहा है, ठीक है, पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू में, एंड वेयर द टेम्परेचर इज लेस वहाँ पर आपका 100% सिट्रस फ्रूट को वो सपोर्ट करेगा। ओके, सो वी हैव दिस पर्टिकुलर थिंग इन दिस पर्टिकुलर पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू, और मोस्टली दिस पर्टिकुलर is a plateau, so plateau are mostly formed by your Dharwad sediments, and also some of the parts of the lower parts is formed by your Gondwana sediments. Okay, so please remember this particular thing about the Pendra Loormi plateau. यहाँ पर बहुत ज़्यादा जानने के लिए ठीक है, छोटा सा है। So this particular, so please remember it is a part of Amarkantak plateau extension, its extension, and some of the rivers are originating in this particular region. And once I will start with the tourism section also, तो वहाँ पर भी हम देखेंगे some of the tourist place also lies in this particular region. ओके, सो आपका क्या होता है, कभी भी ज्योग्राफी आपका क्या होता है कि लिंक है, कभी भी वो आपका सेपरेटेड नहीं है। हम लोग अभी मोस्टली इसको इजी कर रहे हैं कि कुछ चीज़ों को देख रहे हैं और कुछ चीज़ों को आगे के टॉपिक के लिए थोड़ा थोड़ा रख रहे हैं। टुवर्ड्स द एंड विल लिंक एवरीथिंग इन द वन पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, सारे के सारी चीज़ों को लिंक कर देंगे ताकि आपका आंसर राइटिंग वो आपको बहुत हेल्प करेगा। बट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट हम लोग इस चीज़ को यहाँ तक ही समझेंगे, ठीक है। नाउ विल सी द थर्ड पार्ट। तो हम लोग तीसरा देखते हैं। आज का लेक्चर आपका थोड़ा सा बड़ा होगा, सो प्लीज़ आप पेस अप करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे, ठीक है। नाउ वी हैव द फोर्थ। सो फर्स्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट द मैकल, वी हैव टॉक्ड अबाउट पेंड्रा लोरमी, कोरबा इज अ बेसिन, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बेसिन रीजन अभी, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द हाईलैंड रीजन्स ओनली। सो दिस आर द छुरी उदयपुर मतरेंगा माउंटेन। ओके, सो थर्ड वन इज योर छुरी उदयपुर Matiranga. Okay, so we have the Churi Udaipur Matiranga mountain, and it will extend again. If we talk about this particular Churi Udaipur Matiranga mountain, so again this particular, so अगर ये Churi Udaipur Matiranga mountain है, so some of the section below section here it will touch this particular region. अगर देखा जाए तो ये किसको टच कर रहा है, कोरबा. Okay, and above one also touches Sarguja. Okay, so it will touch Korba, Sarguja,
दिस सेक्शन, अगर इस वाले की बात करें, सो इट कम्स इन योर रायगढ़। ओके, तो रायगढ़ को भी टच करेगा। एंड जसपुर अगर देखेंगे तो वहाँ टच नहीं कर रहा, वो बॉर्डर बना रहा है। सो जसपुर के नीचे अगर देखेंगे तो वी हैव, इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर थिंग, सो दिस टचेज द रायगढ़ एंड हियर अगर जसपुर ये देखेंगे, सो दिस इज़ द पत्थलगांव प्लेट्यू। ओके, सो वो क्या है वहाँ पर पत्थलगांव प्लेट्यू। सो प्लीज़ रिमेंबर, आपका जसपुर पे नहीं है, ठीक है, जसपुर पे वहाँ पर क्या आएगा, पत्थलगांव प्लेट्यू। सो इट विल टच रायगढ़, कोरबा एंड सरगुजा, ये पूरा का पूरा रीजन, छोरी उदयपुर मतरिंगा देखेंगे। सो ये कुछ इस तरह से है। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग अगर यहाँ पर देखेंगे तो हियर कम्स योर रिवर मांड। सो प्लीज़ रिमेंबर, आपका यहाँ से क्या हो रहा है, इस तरह से बीच से आपकी फ्लो हो रही है रिवर मांड। रिवर मांड फ्लोज इन बिटवीन, ठीक है। तो कभी कभी पूछ सकते हैं कि इनके बीचों बीच से कौन सी रिवर जा रही है, तो कौन सी रिवर है, वो रिवर मांड विल फ्लो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर छोरी उदयपुर मतरिंगा रेंज, अगर यहाँ पर देखा जाए ये वाले रेंज इसको, सो अगेन प्रेजेंटली अगर आज के समय में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये पूरा का पूरा एक एनिमल मूवमेंट्स का जोन है। एंड दिस पर्टिकुलर छोरी उदयपुर मतरिंगा माउंटेन ओनली, ये वाला जो सेक्शन है, यहीं पर रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज अ इम्पॉर्टेंट एलिफेंट रिजर्व। ओके, सो यहाँ पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या प्रपोज किया है, प्रपोज्ड एलिफेंट रिजर्व। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड अ एलिफेंट रिजर्व नेम्ड योर लेमरू, और यहाँ पर क्या आपका लेमरू सेक्शन है, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर छोरी उदयपुर वी हैव द लेमरू सेक्शन। ओके, और लेमरू सेक्शन जो है वो पूरा का पूरा क्या था, एक आपका, इफ़ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर लेमरू सेक्शन ऑफ छोरी उदयपुर, तो वो क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट जोन है। एंड दैट पर्टिकुलर रिजर्व फॉरेस्ट जोन इज नाउ कन्वर्टिंग इनटू द एलिफेंट रिजर्व। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दैट पर्टिकुलर छोरी उदयपुर। एंड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ छोरी उदयपुर ओनली, यहाँ पर आपका क्या आएगा, छोरी कोसगई। सो यहाँ पर हियर वी हैव अ इंपॉर्टेंट पीक इन छोरी उदयपुर कॉल्ड छोरी कोसगई। छोरी कोसगई इन छत्तीसगढ़, छोरी कोसगई हैज़ अ इम्पॉर्टेंस एज इट इज़ द वन ऑफ द कैपिटल ऑफ योर कलचुरी डायनेस्टी। तो कलचुरी डायनेस्टी का ये एक टाइम पे कैपिटल भी था, ठीक है। एंड देयर वी हैव द इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट टेम्पल कॉल्ड द कोसगई माता टेम्पल। ओके, सो वी हैव द कोसगई माता टेम्पल। And again, if you talk about this particular छोरी उदयपुर मतरिंगा in the कोरबा section, if you move in the कोरबा section, तो कोरबा में वहाँ पर we will find some of the important places like, अगर यहाँ से आपके हसदेव रिवर जा रही है, ये वाला रीजन से हसदेव रिवर, तो हसदेव रिवर के